Dear students, Assalamu alaikum to all of you, and I hope that you all will be fine and well. First of all, let me share this screen that you can know that what actually we are going to talk about in today's lecture. In this lecture, we will talk about the modernism or the modern era, which was started from 1900 to 1940s. Now, when we talk about the modernism, then the first and the most important thing which comes in our mind, which is it's a philosophical movement that, along with cultural trends and changes, arose from enormous transformation in Western society. So now here you have to keep few things in your mind that it is a philosophical movement because so many new things or philosophical things emerged in this era or in modernism. Suppose here I want to give you one most important example which will help you to understand that why it is called the philosophical movement. I think you might have heard the name of Sigmund Freud. So he's actually psychologist, and in this era, in the modern age, first time ever the work was done on psychology. Due to this reason, Sigmund Freud is also known as the father of psychology. So, so many psychological theories emerged in this era. Apart from those psychological theories, there were other so many philosophies which arose in this modern era. Like in the philosophy of psychology, the Sigmund Freud, worked upon the dreams. He said that every person dreams, and that those whenever the person dreams, that has the direct connection of that dream with his own life. Suppose he has given a brilliant example. He had a patient, and she was very old young lady. So once she was sleeping and she had a dream, and in her dream she came to know that her younger nephews died. And when Sigmund Freud analyzed her situation, her circumstances, then he came to know that actually she had she had lost her lover, and she did not marry after that. And when her lover left that area, he traveled to another country or another city. So he was living quite away from her. And last time he visited her home when her elder nephew was dead. When, which means, let me explain to you in Urdu कि उस वो जो पैशन थी सिगमंड फ्रायड की, तो उसने उसको एक ख्वाब आया जिस ख्वाब में उसको ये दिखा कि उसका जो छोटा नेफ्यू है उसकी डेथ हो गई है। तो जब सिगमंड फ्रायड एनालाइज्ड हिज हर सिचुएशन, हर सर्कमटेंसेस, तो वो इस नतीजे पे पहुंचा कि एक्चुअली वो जिसके साथ शी वाज इन लव, वो ओल्ड लेडी जिसके साथ जब वो यंग थी और जिसके साथ इन लव थी, तो वो जो पर्सन था उसकी इनका रिलेटिव भी था, एंड उनसे शादी भी नहीं हो पाई थी। सो ही गॉट मैरिड एंड मूव टू अनदर सिटी। तो वहाँ से बहुत दूर रह रहा था, वो वहाँ पर आता नहीं था। सो ड्यू टू दिस रीज़न, अब लास्ट टाइम जो उस बंदे ने वहाँ पर विजिट किया था, दैट वाज द डेथ सेरेमनी ऑफ एल्डर, उसका जो बड़ा नेफ्यू था उसकी जो डेथ सेरेमनी थी उसमें उसने शिरकत की थी। सो दिस थिंग वाज केप्ट इन हर अनकॉन्शियस माइंड। उसका जो अनकॉन्शियस माइंड था, ये चीज़ें उसके अंदर थी, एंड फ्रॉम दैट अनकॉन्शियस माइंड द प्रोसेस ऑफ ड्रीम टुक प्लेस, एंड वहाँ से ड्रीम की फॉर्मेशन हुई, एंड दैट अनकॉन्शियस माइंड पुश्ड ड्रीम एंड द सबकॉन्शियस माइंड टू मेक अ ड्रीम। तो अब वो अनकॉन्शियस माइंड से वो ड्रीम को पुश होता है। देन दिस इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड, द थ्योरी ऑफ ड्रीम्स। तो उसमें ये एक्सप्लेन उसने किया है कि ये इस तरह से उसके ड्रीम को पुश किया, और उसके
ड्रीम के ऊपर इन्फ्लुएंस आया उसके अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि भाई लास्ट टाइम जब आपका जो लवर था उसने जो विजिट किया था वो थी डेथ सेरेमनी ऑफ योर एल्डर नेफ्यू, तो अब अगर योर यंगर नेफ्यू विल डाई देन that person will visit again in the death ceremony के लिए वो visit करेगा and then that you would have a chance to see him again. तो इसीलिए यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने उसकी पूरी सिचुएशन को एनालिसिस किया, देन ही फॉर्म्ड द थ्योरी दैट ईच एंड एवरी ड्रीम कैन बी एनालाइज्ड इन द एंड द रिजल्ट्स कैन बी टेकन फ्रॉम देम, कि वो क्यों आपको ड्रीम आया। एक जो ड्रीम बनता है आता है इंसान को, तो हर ड्रीम के पीछे एक रीज़न होता है, एक पर्पस होता है। So such kind of theories developed in modernism. Due to these all reasons, this is called the modernism is also called philosophical movement, because ये जो चीज़ें हैं ये philosophical चीज़ें हैं, ये आम चीज़ें नहीं है, आम बंदे की समझ से बालातर है। So that's why it is also called the philosophical movement. That along with cultural, let me highlight cultural trends and changes. देखें अब this is the important thing that in modernism there was a cultural change as well. From 1900 to 1940s, you can see that there was a transformation in culture as well, because in before modernism, the people of Victorian era, they were they were believing their culture and traditions were on stake, because as I've told you in previous lecture as well, that in Victorian era or before Victorian era, the people were living in agricultural societies. So the people were living in agricultural societies, and they were now coming from uh, countryside areas to the villages. तो वहाँ से countryside areas से countryside areas to cities, वो cities में आ रहे थे। तो when they were coming in cities, so their culture was unstable. उनका जो कल्चर था, उनकी जो सोशल वैल्यूज थी, सोशल जो प्रायोरिटीज थी, नॉर्म्स थे, ट्रेडिशंस थे, दे ऑल केम ऑन स्टेक। उनके उनको खतरा लायक हो गए थे बिकॉज ऑफ द मॉडर्निज्म एंड बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअलिज्म। तो इन चीज़ों की वजह से और इनको इनके कल्चरल वैल्यूज़ को इश्यूज आ गए। सो बट व्हेन इन मॉडर्निज्म, जब मॉडर्निज्म आया तो ऑब्वियसली द चेंजेस टुक प्लेस। वहाँ पर एंटायरली चेंजेस नहीं हुई थी विक्टोरियन में, लेकिन यहाँ पर कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। बिकॉज सपोज कि उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, जो ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ होते थे, जो खाने पीने की जो उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, जो उठने बैठने की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, कल्चरल वैल्यूज़ थी, दे ऑल गॉट चेंज्ड। अब वो सारी चेंज्ड हो गई, इनके लिविंग स्टैंडर्ड और ये सारी चीज़ें चेंज्ड हो गई। ओके, सो दिस ऑल हैपेंड इन modernism. So due to all these reasons, this I think I tried my best to explain to you this definition. Okay, कि इसमें philosophical movement हम उसको क्यों कहते हैं और इसमें cultural changes भी आए। Now some say it was started from 1890s to 1940s. अब चूंकि कुछ if you remember in when I was explaining to you the Victorian age, then I told you that the dates in history always differ. According to some writers or according to some historians, the dates are different, and from according to other historians, the dates are different. So here, some say that the modernism was started from 1900 to 1940. Similarly, others say that it was started from 1819. Okay, 90s. Now here you see that I have given as 90s, which means okay, it was started from in the era maybe 91, maybe 92, maybe 95. So it was started from 1890s to 1940. So this is the perception of some writers, and they believe that because they say that formally the maybe they say that formally the era was started in 1900, but informally the influences are the values of that era were started from even in 80s 1890s. Okay, similarly it is the movement in visual art, the modernism also called the movement in visual arts, music, literature, drama, which rejected the old Victorian standards.
Now here, from this point, we would come to know that the practices of modernist, the people of modernism, hadn't were against the practices of Victorian era, because the Victorian people of Victorian age were somehow following their traditional values, but here they all rejected their traditional values, and the new values arose over there, new traditions got over there. So due to these all things, there was a great change in modernism, and they also rejected the standards of Victorian. Suppose the standard of visual art here, like symbolism, took place, and they say that each and everything should not be portrayed directly, but that should be portrayed indirectly. And because the direct picture of the society or direct picture of any issue always hurt the feeling and emotions of the people. So in order to avoid such kind of things, a writer portray the issue of the society or the picture of the society through symbolism, through the art. Similarly, there was the change in music and literature and drama and in so many things. Okay, now let's move forward. Now here I have mentioned two things: uh, Dickinson and Whiteman. These both are considered the mother and father of the modernist movement, modernism. Okay, because they had most direct influence on early modernists, because the works of these both writers influenced other writers, and the other writers were, जो दूसरे जो इनके राइटर्स थे वो इन्हीं को फॉलो करते थे। एमली को और जो वाइटमैन थे इनके जो वर्क्स थे इन्हीं को फॉलो करते थे। सो due to this reason, these both writers had a lot of influence on modernism, or we can say that these both writers had a lot of influence on early modernism, mod, uh, early modernism, and that's why they are called the mother and father of the modernism. Sometime after their deaths, when the Emily and the Whiteman were dead, after their death, okay, let me highlight it. The Imaginist poet. Now, this is the important term, the Imaginist. अब क्या हुआ कि जब इनकी डेथ हो गई तो इनके बाद एक और ग्रुप था जो पोइट्स का ग्रुप था, दैट got recognition in England, and they came on screen, and they start talking about the imaginism. They talked about the imaginism, and together they formed a group, and उस ग्रुप का जो नाम दिया गया था उसका था इमेजिनिस्ट पोइट्स। Began to gain importance, Imaginist poet generally wrote short poems. अब ये क्या करते हैं, इनकी जो poems होती थी वो shorter होती थी, ये लंबी चौड़ी नहीं होती थी, and they used to say that उनका जो poems हैं, they must be shorter, but they must be to the point, और उनमें कोई एग्जैजरेशन नहीं हो, वो टू द पॉइंट हो, और आपकी कोई एम्बिग्यूटी उसके अंदर नहीं हो। सारी जो आप जो मैसेज देना चाहते हैं, दैट मैसेज शुड बी क्रिस्टल क्लियर लाइक द नोज ऑन योर फेस। सो नोज ऑन योर फेस, सो इसी तरह से ये इनके मैसेजेस होते थे। एंड क्लोज आगे क्या है, हेयर क्वेश्चन अराइजेस, हु वर द इमेजिनिस्ट पोइट्स। अब यहाँ पर आपको ये सवाल आ सकता है माइंड में कि ये जो इमेजिनिस्ट पोइट थे ये कौन है। सो आई हैव इजरा पाउंड, ये एक पोइट थी, रिचर्ड थे, और एच डी, आफ्टर एच डी, रिचर्ड एच डी। ओके, तो अब ये जो पोइट्स थे इनको टुगेदर एक दो और भी नेम्स हैं जो कि मुझसे मिस हो गए हैं यहाँ पर, तो यू मे फाइंड देम ऑन गूगल एज वेल। इमेजिनस पोइट को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस साइन the word imaginist and was when Imaginism was publicly launched. The movement started in London, where a group of poets met and discussed changes that were happening in the poetry. अब ये जो ग्रुप था, ये जो पूरा जो ग्रुप था, अब एच डी, रिचर्ड, इजरा पाउंड, अब ये जो तीनों थे, ये तीनों क्या करते हैं, ये इन्होंने एक मीटिंग की लंदन के अंदर, जहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर दी चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द पोएट्री। वो कौन सी चेंजेस हैं और वो चेंजिंग्स हैं और वो जो पोएट्री में हो रही हैं। तो दे यूज टू डिस्कस सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड पब्लिकली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इमेजिनिस्ट पोइट्स हैं।
लेट्स मूव फॉरवर्ड इन हम इमेजिनिस्ट पोइट्स को ही फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। इमेजिनिस्ट पोइट्स फोकस्ड ऑन पिक्चर्स एंड सिंबोलिज्म। तो ये जो सिंबोलिज्म का जो ट्रेंड था, जो कि द ट्रेंड विच केम इन मॉडर्निज्म, so this trend came after the imaginists. They laid the foundation of symbolism. When we talk about symbolism, that what actually symbolism all is all about. The symbolism, always the symbolist writers believe that the reality of the society or the bitter realities of the society should be portrayed through the symbols or the pictures, through the sign language. Such as here, I would like to give you an example that whenever you see any injustices being done in the society, so you should not, being a writer, you should not portray as it is or 100% reality. From this point, I do not mean that the reality should not be portrayed 100%, but I just want to make the point that exact picture should not be portrayed. Instead of that, the writer should use another method in order to portray that picture, to portray that reality. Suppose the something is being done in the society, which is like the injustice is being done in the society, and being a writer, you come across on that thing, then do not portray exact picture. Instead, you should use symbolism, use some pictures, you may use some writers, you signs, or you may use some cartoons in order to portray that picture that this kind of injustice is being happening in a society. Another example is that if someone is slaughtering the another person, then if you will portray exact picture, then that picture would hurt the emotions and the feelings of the people. And the people in the society, when they read this or when they come across on this accident, then obviously the peace of mind of those people will be the peace of mind of the readers will be disturbed. So here symbolists believe that the peace of mind of the readers should not be disturbed. In order to avoid such kind of things, in order to avoid these the feelings, the hard feelings, a writer must portray the reality through the cartoons, through the symbolism, through another theme. आप कोई और थीम यूज करें और उस थीम के थ्रू आप उसी रियलिटी को आप शो करें, अपने रीडर्स तक पहुंचाए कि ये इनजस्टिस सोसाइटी में हो रहा है। यू गॉट माय पॉइंट। आपको इसी तरह से ये जो इमेजिनिस्ट थे, इन्होंने इसी तरह से फोकस किया पिक्चर्स सिंबोलिज्म सिंबल्स के ऊपर। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेंड ऑफ सिंबोलिज्म स्टार was started in United Kingdom. Here, the same example is as a picture speaks a thousand words, because so many people were being slaughtered over there. Because in the modernism, you also know that from 1914 the World War One was started. There was so many sufferings in the society. The people were suffering. The people were suffering from so many difficult times. So the difficulties of the people were also being portrayed by the different writers, and some of the writers were portraying the exact picture of the society. So that was torturing the people. So due to this reason, these imaginists focus on the picture and they believe that the picture speaks a thousand words. If you will portray these all things through a picture, but the picture should be related to the cartoons, and when you will portray that reality, so the same message will be conveyed. But through this message, the peace of mind of the readers will not be disturbed, they will not be hurt, and their feelings and emotions will not get hurt. So, but if you will portray exact picture, then that will hurt them. So you should not hurt them, but you should just convey your message, which can be done through the picture. तो ये इसी तरह से थे जो इमेजिनिस्ट थे। ये इसी बिटर रियलिटीज आर हार्ड टू सी। ये कहते थे कि जो बिटर रियलिटीज होती हैं सोसाइटी की, दोज आर वेरी हार्ड टू सी। आप उनको डायरेक्ट अगर एग्जैक्टली उनको आप कोट करेंगे तो वो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको देखना, उनको गो थ्रू करना। तो ड्यू टू दिस रीजन इमेजिनिस्ट प्रपोज्ड कि आप पिक्चर्स और सिंबोलिज्म का यूज़ करें। दे शुड नॉट बी एम्बिग्यूटी इन योर वर्क। आप जब आप
पिक्चर्स और सिंबोलिज्म का यूज कर रहे हैं तो उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। आपका जो मैसेज है दैट शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर, वो आपका मैसेज क्रिस्टल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो इसके अंदर मॉडर्निज्म के अंदर अगर हम और इसको पढ़ते हैं कि मॉडर्निज्म के अंदर और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो हैं फेमिनिज्म, ठीक है, एंड वर्ल्ड वॉर वन। क्योंकि when we talk about the modernism, then obviously we have to mention that the World War was also started in 1914। 1914 में वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई थी, तो ऑब्वियसली जब वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई है जिसमें इतनी तबाही हुई है इंसान जात की, तो उसको तो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। We are not supposed to discuss World War One only, but we have to see that what impacts what kind of impacts were faced by the mankind after World War One। जो वर्ल्ड वार वन हुई थी तो उसके बाद जो वो कौन से इम्पैक्ट्स थे जो कि इंसानों ने फेस किए। सो वर्ल्ड वार वन ब्रोक आउट सून आफ्टर द हाइट ऑफ इमेजिनिज्म। ये जब इमेजिनिज्म की हाइट थी तो उसके फौरी बाद वर्ल्ड वार वन भी आ गई थी। सम पोइट्स लाइक, अब यहाँ पर कुछ पोइट्स के मैंने नाम कह दिए हैं, मेड द स्प्रेड ऑफ इमेजिन डिफिकल्ट टू डिसअपियर। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा जो इन स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ नहीं है। अब वर्ल्ड वार वन देखें, उसमें क्या था कि जब इतने सारे लोग मर रहे थे, इतनी ज़्यादा सोसाइटी में इश्यूज थे, डिस्ट्रक्शन थी, इतने ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, हंगर थी, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उनको रहने के लिए घर नहीं थे उनके पास। तो फाइनली जब वो एड ये जो वॉर एंड हुई है, तो हम जो वॉर के आपने आईआर में भी पढ़े हुए थे, पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर वन में क्या क्या हुआ है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉर वाज ओवर। जब वो वॉर खत्म हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ है। तो अब जो प्रीवियस वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस थे वो इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। प्रीवियस जितनी भी वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस थे यहाँ के लोगों ने उनको बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग इन एन अदर वेज। वो उनकी ज़िंदगी के जो मकासद थे वो इंटायरली डिफरेंट हो गए, उनकी जो सोच थी। बिकॉज जब आप किसी सर्कमटेंसेस से गुजरते हैं और वो भी 4-5 साल का हो, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आता है आपकी सोच के ऊपर। तो ऑब्वियसली यहाँ वहाँ के लोगों के, जहाँ पर ये वॉर थी तो उनके लोगों के ऊपर इम्पैक्ट्स आए, क्योंकि जब वॉर होती है तो वहाँ पर सारी जितनी भी सराउंडिंग्स में जो कुछ भी हो रहा होता है वो वॉर के ऊपर ही हो रहा होता है। सपोज बिफोर वॉर द थीम्स ऑफ द राइटर्स वर डिफरेंट। जो राइटर्स जितने भी होते हैं उनके थीम्स डिफरेंट होते थे, बट ड्यूरिंग द वॉर द मोस्ट ऑफ द राइटर्स स्टार्ट राइटिंग अबाउट द वॉर। उन्होंने वॉर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, उसके इम्पैक्ट्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने उनसे जो नुकसानात हो रहे हैं उनके ऊपर। मीन्स के मोस्ट ऑफ द राइटर्स, जितने भी राइटर्स थे, वन वे अदर वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी राइटिंग्स का कनेक्शन वॉर से ही होता था। उनका जो थीम होता था वो वॉर ही होती थी। तो ये इम्पैक्ट है वॉर का उनकी मेंटेलिटी के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर। सो ऑब्वियसली जब आप राइटर्स के ऊपर इतना इम्पैक्ट आ रहा है, वो जब अपनी राइटिंग में अपने थीम्स ही, उनके जो सारे थीम्स ही वॉर से रिलेटेड हैं, तो वो जब रीडर्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनके ऊपर भी उनका इम्पैक्ट ही आएगा। सो मिथ इन मॉडर्निज्म, अब ये मिथ क्या था, ट्रेडिशनल जितनी भी वैल्यूज थी वो सारे मॉडर्निज्म में ये रिजेक्ट कर रहे थे, बट इन्होंने मिथ को रिजेक्ट नहीं किया जो पिछले ट्रेडिशन से चली आ रही है। मिथ मीन्स दैट थिंग विच इज़ नॉट रियल। वो जो सुनी सुनाई बातें हैं उसके लिए कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये रियल है या नहीं है। तो मिथ का कॉन्सेप्ट अभी भी इसमें था, मॉडर्निज्म में इन्होंने फॉलो किया। और इम्पोर्टेंटली द इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार, जो मैं इम्पैक्ट्स की बात कर रहा था वो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है कि वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट्स क्या हैं। द ग्रेट शिफ्ट इन लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया। बिफोर वर्ल्ड वार वन द लिटरेचर वाज इंटायरली चेंज, द लिटरेचर वाज डिफरेंट। The writers were writing about social problems, about beauty, about society, about traditions, about religion, about science, about so many different topics. The literature was different. But when the war broke out in the Europe, so they start writing about the war. So जब अब जो भी literature produce हो रहा था, that literature was being produced purely about war.
वो सिर्फ वॉर के ऊपर ही लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था, जो बाकी जो दूसरे इनके जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे इग्नोर्ड हो गए। ओनली द वॉर वाज द सेंट्रल फोकस ऑफ द लिटरेचर। सिमिलरली मेंटेलिटी ऑफ पीपल गॉट टोटली चेंज। अब लोगों की जो मेंटेलिटी थी, ऑब्वियसली उसकी भी उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल चेंज हो गई। अब वो क्यों चेंज हुई है, नीचे वाले पॉइंट में है, फियर, सफरिंग, हंगर, डिप्रेशन, आइसोलेशन, नो होप। लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस ऑल थिंग्स। अब लोगों को इतना ज़्यादा फियर था क्योंकि इतनी लोग मर रहे थे, तो दे वर थिंकिंग दैट वेदर वी विल लिव और वी विल डाई, वी डोंट नो दैट हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारी ज़िंदगी हमने कैसे गुजारनी है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड द फियर। ये उनको फियर था। सफरिंग्स, लोगों को बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हुई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था, उनकी फैमिलीज तबाह हो गई, उनके घर तबाह हो गए, उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई, उनका बिजनेस जो भी था, जो कुछ भी था उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो दे वर सफरिंग अ लॉट। हंगर, उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, डिप्रेशन था, वो आइसोलेशन का शिकार हो गए। जो आइसोलेशन का जो मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन केम ऑन इट्स पीक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। जब वर्ल्ड वॉर वन का ज़माना था तो उसमें आइसोलेशन अपने पीक पे आ गया था। बहुत ज़्यादा लोग आइसोलेशन का शिकार हो गए क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है। एंड नो होप, उनकी लाइफ में कोई भी होप नहीं था। सो ड्यू टू दिस रीज़न द राइटर आल्सो स्टार्ट राइटिंग अबाउट होप एज वेल, कि लोगों को होप दिया जाए। राइटिंग का वॉर का थीम लेकर आप उनको होप दोगे, योर लाइफ इज़ नॉट एंडेड हेयर, देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, and always keep a green tree alive in your heart, such kind of things, you know। इसी तरह से जो राइटर्स थे उन्होंने लिखना, लोगों को मोटिवेट करना चाहा। सेंस ऑफ लॉस्ट जनरेशन। अब ये जो लास्ट जनरेशन है, इसका इसका मीन्स के उन लोगों की जो अपनी वैल्यूज थी, जो ट्रेडिशंस थे, वो सारे उनके लॉस्ट हो गए। उनके जितने भी रिलीजियस वैल्यूज थे वो सारे ख़त्म हो गए। लोग रिलीजन से डाइवर्ट हो गए क्योंकि ये मॉडर्निज्म का ज़माना था, तो रिलीजन से लोग बहुत ज़्यादा दूर हो गए। साइंटिफिक रिवोल्यूशन आ चुका था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, तो इसी वजह से लोग रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। तो विक्टोरियन में दूर हुए, लेकिन मॉडर्निज्म में बहुत ज़्यादा दूर हुए। ठीक है, तो उनकी अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, जो कस्टम्स थे, वो दूर हो गए। अब पहले क्या होता था, जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती थी, तो इन यू नो इन द एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इफ वन मेंबर ऑफ द सोसाइटी वुड you if the one member of the society would get success, then that would help his other family members. If one brother is getting success, then that brother will help, will try his best to help his other siblings as well. But in modernism the concept got changed. अब कोई भी एक बंदा, वो अगर फैमिली से सक्सेस उसको मिल रहा है, तो ही इज ओनली कंसर्न्ड विथ हिज ओन सेल्फ ओनली। वो दूसरों को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, कोई प्रायोरिटी ही नहीं दे रहा है कि मेरी फैमिली भी है, उनको भी मुझे सपोर्ट करना है। नो, ही जस्ट इग्नोर्ड देम। So means the concept of generation was lost. Similarly, therefore the simplicity and the previous values were also tried to be revived. बट यहाँ पर क्या था, जनरेशन तो लॉस्ट हो गई थी, लेकिन अब जो सिंपल सिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई। देन प्रीवियस जो इनके वैल्यूज है उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई, तो ताकि इनको हम थोड़ा बचा सकें। ओके, राइटर्स वर फोर्स्ड टू राइट अबाउट वार। अब देखें, यहाँ पर कुछ राइटर्स ऐसे थे जो कि वॉर के बारे में वो नहीं लिख रहे थे। अब वो अपने ही, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट था वो उसके हिसाब से वो लिख रहे थे। सो देवर they were writing about their own standards or their own tests. So the governments forced them forced them to write about the war. They forced them to support the country, support the army, support the soldiers, and defame the other armies and other their enemies. And you have to favor, you have to uplift the spirits of the nation, that through your works, when the nation would read your work, then they should support the country, they should support their army as well, in order to support, to get support from writers, they force them। उन्होंने अपने राइटर्स को फोर्स किया कि भाई आप यहाँ पर लिखें, वॉर के ऊपर लिखें और अपनी आर्मी के और अपनी स्टेट के लिए लिखें।
ताकि लोगों के जो स्पिरिट्स हैं वो उनकी जो सिंपैथी है वो गेन कर सकें। ठीक है। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्निज्म में आया। नाउ व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो इतनी डिटेल में लिखा हुआ है ये आप लोग खुद स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ कि व्हाट एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज। देखें, राइटिंग में पहले क्या होता था कि सिंपली जो कैरेक्टर जो एक्शंस करता था वो लिखते थे। सपोज नॉवल के अंदर जो भी वो कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो वो लिख रहे हैं वो। और लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये इस तरह से किया गया कि ये जो एक्शन कैरेक्टर ने किया है, ये जो इस बंदे ने ये जो काम किया है, इसके पीछे उसका रीजन क्या है। सपोज कि अ पर्सन वांटेड टू क्लाइंब ऑन द ट्री, वो दरख्त पे चढ़ना चाहता था। अब पहले क्या होता था कि वो सिंपली बताता था कि यहाँ पर आया और वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। भाई क्यों चढ़ा? उसके माइंड में जो वो प्रोसेस हुआ था कि मैं इस दरख्त पे चढ़ूंगा, इसका रीज़न क्या है, फॉर द शेक ऑफ एंटरटेनमेंट, इन बिकॉज ही इज़ फियरिंग और ही वांट वहाँ से उस दरख्त में से कोई फल तोड़ना चाहता है। तो वो जो प्रोसेस है उसकी सोच का, जो उसके माइंड में चल रहा है, उसकी इमेजिनेशन में चल रहा है, दैट प्रोसेस इज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वो एक्शन करने से पहले, एक्शन करने के लिए उसने अपने दिमाग में जो पूरा प्रोसेस चलाया है, उस प्रोसेस को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो यहाँ पर मॉडर्निज्म में अब जो भी रिटन वर्क आ रहा था तो उसमें ये क्या कर रहा था, राइटर्स क्या करते थे, हर एक्शन के पीछे उसके जो रीजंस होते थे, वो जो माइंड में प्रोसेस चलता था, उस पूरे प्रोसेस को वो एक्सप्लेन करते थे। सपोज के वन पर्सन इज गोइंग, इफ द पर्सन इज गोइंग ऑन द बीच, वो बीच पे गया है, तो अब वहां पर वो क्या कर रहा है, अपने जो माइंड के अंदर उसकी जो पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो देगा। बीच के बारे में देगा, ठंडी हवा चल रही है उसके बारे में देगा, लहरों के बारे में देगा, और जो बीच की जो धूल उड़ के उसके फेस पे लग रही है उसके बारे में देगा, और वो जो सुकून इंटरनली वो जो फील कर रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन देगा। विच मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग थ्रू इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, दैट इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसको जब एक्सप्लेन किया गया राइटर्स के दौरान, राइटर्स ने जब उनको एक्सप्लेन किया तो उसको टर्म दिया गया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये दो एग्जांपल्स के साथ। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Move forward, the term stream of consciousness tracks back to the principles of psychology। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है क्योंकि ये हमें पता है कि जो माइंड को जब हम स्टडी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके माइंड में वो जो पूरा प्रोसेस होता है थिंकिंग का, उसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है और पब्लिश इन 1819 बाय विलियम जेम्स। तो इसको आप देख लीजिएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइट रेफर्स टू नैरेटिव टेक्निक वेयर द, अब देखें यहाँ पर इसकी हेडिंग, आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग रेफर्स टू द नैरेटिव टेक्निक। नैरेटिव मीन्स एक्सप्लेन, आप किसी चीज़ को जब नैरेट कर रहे हैं, वेयर द थॉट्स, बंदे की जो थॉट्स हैं उनको आप नैरेट कर रहे हैं, इमोशंस को आप नैरेट कर रहे हैं। ठीक है। इनको रीडर कैन ट्रैक द फुल मटेरियल स्टेट ऑफ द, अच्छा जो सॉरी मेंटल जो स्टेट है, जो मेंटल स्टेट है उस बंदे की, जब आप व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट समथिंग, तो हम सिर्फ उसके एक्शंस को नहीं देख रहे हैं बल्कि उसकी जो पूरी मेंटल स्टेट है, हमें उसके बारे में भी पता लग रहा है कि इस वक्त उस बंदे की मेंटल स्टेट क्या थी। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी हुई है। एक्सट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रेफर्स टू स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द इंटीरियर फ्लो ऑफ थॉट्स। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ब्रीफली एग्जांपल्स दे दिए हैं, आपको वहाँ से भी समझ में आया होगा और इनको भी आप देख लीजिएगा। ओके। अब देखिए, लॉस्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे भी दिया हुआ था लेकिन यहाँ पे भी है कि लॉस्ट जनरेशन, व्हाट डू वी मीन, दिस इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निज्म। अब देयर इज नो होप। लॉस्ट जनरेशन में ये था कि उन of when the war was ended, that during the war the people had no hope, they were thinking that
Now, for what purpose we should go on with the life? There is no reason behind our living. हमारे living के पीछे कोई reason नहीं है, कोई logic नहीं है, कोई purpose नहीं है. So उनके पास कोई hope नहीं था, कोई काम करने को नहीं था, because each and everything was destroyed. So obviously जब इतने बड़े scale पे war हुई थी तो उसको settled होने में भी, हालात को सेटल होने में भी टाइम चाहिए था. तो लोगों के पास कोई होप ही नहीं था. उनकी ज़िंदगी का जो पर्पस था वो ख़त्म हो चुका था. यू आर नॉट अलोन. सो राइटर्स ट्राई टू मोटिवेट द रीडर्स एंड द पब्लिक दैट यू आर नॉट अलोन. सिर्फ आपके अकेले के साथ ये नहीं हुआ है. जितने भी हमारी नेशन है, पूरी नेशन इस प्रॉब्लम से सफ़र किया है. सबके साथ ये सूरत हाल है. बट यू हैव टू कीप ग्रीन ट्री अलाइव इन योर हार्ट. You have to keep hope in your heart, and you have to keep uh, uh, strong belief in Almighty, and you have to keep strong belief in yourself as well, that nothing, nothing is impossible. कुछ भी impossible नहीं है. The life is not ended yet. Still, there is long way to go, and you have a lot to do. You have to do for yourself. You have to do something for your family, for your society, for your country. Through through such kind of things, the writers tried to motivate the people who had the concept of lost generation, the censorship and the cultural values. Now, from this point, एक्चुअली जो राइटर्स या मूवीज या ड्रामाज जो क्रिएट हो रहे थे उनको सेंसरशिप किया जा रहा था इन ऑर्डर टू रिवाइव द कल्चरल वैल्यूज. जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, उनको रिवाइव करना चाहा. तो वो कैसे करना चाहा? वो सेंसरशिप के जरिए करना चाह रहे थे. उनको उनको रिवाइव करना चाह रहे थे. जो भी ड्रामाज या मूवीज या इनके अंदर जो भी ऐसी चीज़ें जो कि फैमिलीज़ के लिए या फैमिलीज वैल्यूज़ के ख़राब करने के लिए थी, तो उनको सेंसरशिप के थ्रू करा जाता था. सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट आया कि पहले आप उनको सेंसर करें. अगर कोई चीज़ हमारी फैमिली ट्रेडिशंस के अगेंस्ट हैं तो उसको आप उन सीन्स को आप स्किप कर दें, और आप ऐसी 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 चीज़ें रखें जो कि सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए कंफर्टेबल. रियलिटी वाज बीइंग पोर्ट्रेड. क्योंकि अब यहाँ पर लॉस्ट जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि जो एग्जैक्ट रियलिटी थी वो पोर्ट्रे की जा रही थी राइटर्स के ज़रिए. राइटर्स एग्जैक्ट रियलिटी पोर्ट्रे कर रहे थे, तो इससे वो बहुत हार्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे थे. तो उसी के बाद ही ये जो आया सिंबोलिज्म आया, तो सिंबोलिज्म इसी के अगेंस्ट आया था, अगेंस्ट द नेचुरलिज्म. आगे चलते हैं इसमें. क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस. अब यहाँ पे ये क्या था कि इन्होंने क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्ट, कुछ ऐसे सवाल थे जो कि मॉडर्निज्म के द पीपल हु वर लिविंग इन मॉडर्निज्म, दे स्टार्ट आस्किंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. They start asking that what is reality, actually what reality is, how to judge the reality, how to analyze the reality. Development in psychology, I have already gave you example in the starting, that how the Sigmund Freud did work a lot. He did a lot of work in the psychology, and he is considered the father of the psychology. So a lot of development was seen in the modernism after World War One. Why this happened? People start asking that why this happened, what were the reasons behind this war, now what will happen to us. Such kind of questions were coming into their minds. Primitism, simplicity, and old values increased because they suffered a lot from the modernism and from the world and from the war. So they tried to revive the primi- primitivism, and through the primitivism, they tried to revive their simplicity, the way of their eating, the way of the dressing, the way of their social social what to say, the social values, cultural values, religious values. They tried to revive all of them. And transformation of hero. Now, more importantly, the transformation of hero also took place in the modernism. Here, there was the transformation of hero. Like before modernism, there was the hero was quite, brilliant, morally good. There was the morality in the hero, the moral values over there. But in modernism, the concept of morality from hero was took out. अब सिंपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये इस तरह था
कि ट्रांसफॉर्मेशन हीरो के अंदर आ गई। पहले क्या था, जितने भी हीरोज होते थे, चाहे ड्रामाज हो, मूवीज हो, नॉवेल्स हो, उनके अंदर जो हीरोज होते थे उसके अंदर मॉरलिटी होती थी, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज होती थी। लेकिन यहाँ पर अब क्या आ गया, मॉडर्निज्म के अंदर वो सारी मॉरल वैल्यूज ही खत्म कर दी उन्होंने हीरो के साथ। एक गुंडा भी हीरो है। आपको लग अपेरेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि ये गुंडा है, उसकी हरकतें ऐसी हैं कि वो एक विलन ही लगता है, लेकिन वो है हीरो, उसको एज अ हीरो पोर्ट्रे किया गया है। तो बट बिफोर दिस, मॉडर्निज्म से पहले ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। उसकी जो अपेरेंस होती थी, उसका चलना उठना बैठना बात करना, हर चीज एक मतलब मॉरलिटी से रिलेटेड होती थी। वो मॉरल वैल्यूज और इथिक्स के मतलब दायरे में आती थी और उनसे बाहर नहीं होती थी। बट मॉडर्निज्म के अंदर मॉरलिटी का जो कॉन्सेप्ट था हीरो के अंदर से, वो उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का भी हीरो हो सकता है। बाहर एक वो गुंडा लग रहा है, उसके बात करने का तरीका एक वल्गर है, लेकिन ये एक हीरो है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो टुक प्लेस इन द मॉडर्निज्म। उसके बाद यहाँ पर मॉडर्निज्म में क्या आता है कि कुछ लिटरेरी ट्रेंड्स आए। द फर्स्ट लिटरेरी ट्रेंड वाज रियलिज्म, द सेकेंड वाज नेचुरलिज्म, उसके बाद सिंबोलिज्म आया। सो द लिस्ट गोज ऑन। सो ये जो लिटरेरी ट्रेंड्स हैं, ये मॉडर्निज्म में है। सो नाउ अब ये हमारे कोर्स आउटलाइन में भी है। सो आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट व्हाट एक्चुअली रियलिज्म इज। रियलिज्म क्या है, व्हाट इज नेचुरलिज्म, व्हाट इज सिंबोलिज्म। तो ये जितने भी, व्हाट इज एग्जिस्टेंशनलिज्म, व्हाट इज सरियलिज्म, तो जितने भी लिटरेरी टेंस हैं, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट एक्चुअली रियलिज्म इज ऑल अबाउट। ओके, तो यहाँ का लेक्चर आज का ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन प्लीज़ आस्क मी, आई विल लेट यू नो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू। खुदा हाफिज़, बाय।